જોઈ રહ્યા છો ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી ને આપની સાથે હું છું પ્રીતિ। બુલેટિનની શરૂઆત કરીએ મહત્વના સમાચારથી। વાત કરીએ સુરતમાં કતારગામમાં ચોરીનો અજીબોગરીબ કિસ્સો સામે આવ્યો છે। જ્વેલર્સની દુકાનમાંથી સોનું અને દુકાનના માલિક ગાયબ થઈ ગયા। ત્યારે કારીગર આવ્યો ત્યારે દુકાન ખુલ્લી હાલતમાં હતી। ચોક બજાર પોલીસે ઘટના સ્થળે પહોંચી તપાસ હાથ ધરી છે। કતારગામમાં ચોરીનો આ અજીબોગરીબ કિસ્સો, સોનું તો ગાયબ થયું પરંતુ સાથે સાથે જે દુકાનના માલિક છે તે પણ ત્યાં હાજર ન હતા। જ્યારે કારીગર આવ્યો અને દુકાન ખુલ્લી હાલતમાં જોઈ ત્યારે આ વસ્તુની જાણ થઈ છે। જો કે આ બાબતે પોલીસને જાણ કરવામાં આવી છે। ચોક બજાર પોલીસે ઘટના સ્થળે પહોંચી તપાસ હાથ ધરી છે। કતારગામની આ ઘટના છે ચોરીની ઘટના, પરંતુ ચોરીનો અજીબોગરીબ કિસ્સો, સોનું સાથે માલિક પણ દુકાનમાંથી ગાયબ છે। તો લૂંટની આશંકા વચ્ચે પોલીસ તપાસ પણ અત્યારે શરૂ કરવામાં આવી છે। જાણકારી સાથે સંવાદદાતા કીર્તેશ અમારી સાથે જોડાઈ ગયા છે। કીર્તેશ, કતારગામના ચોરીનો આ અજીબોગરીબ કિસ્સો, આ મામલો શું છે તે જણાવશો? બિલકુલ, સુરતના કતારગામ વિસ્તારમાં અજીબોગરીબ કિસ્સો આવ્યો છે। જ્વેલર્સની દુકાનમાં લૂંટ બનવાની આશંકા વચ્ચે કતારગામનું પતંગ જ્વેલર્સ છે તેનો માલિક બપોર બાદ દુકાન બંધ કરી ગયો હતો। જોકે બપોર બાદ કારીગરો આવ્યા ત્યારે દુકાન ખુલ્લી હતી। દુકાનનો માલિકનો પણ અતો પતો નથી જે પ્રકારની આ ઘટના બની કે કહી શકાય। લાખો રૂપિયાનું સોનું ગાયબ થયા હોવાની તેને ઘટના કહેવાય રહી છે। મોડી રાત્રે ઘટનાની જાણ કરતા સ્થાનિક લોકો સહિત પોલીસ ઘટના સ્થળે દોડી આવી હતી, પણ આ મામલે હજી સુધી કોઈ ફરિયાદ કરવામાં આવી નથી। એને લઈને અનેક વિતર્કો સામે આવી રહ્યા છે। કીર્તેશ, જે માલિક છે, જે દુકાનના માલિક છે, તેમના પરિવારજનો સાથે કોઈ વાતચીત થઈ છે? તેમનું શું કહેવું છે? બિલકુલ, પરિવાર આ મામલે મરીનું નામ મત પાડવા તૈયાર નથી, કારણ કે જે પ્રકારે કહી શકાય કે આ સમગ્ર ઘટનામાં દુકાન માલિક ગાયબ છે, દુકાનમાંથી સોનું ગાયબ હોવાને લઈને હજુ સુધી પરિવાર ફરિયાદ કરવા સામે નથી આવ્યું। તેને લઈને પણ ઘણા મોટા સવાલો ઉભા થયા। કીર્તેશ, જે દુકાન છે ત્યાં પણ સીસીટીવી લાગેલા હશે અને ત્યાં ના હોય તો આસપાસની જે દુકાનો છે ત્યાં પણ સીસીટીવી લાગેલા હશે। શું તેના આધારે અત્યારે તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે? બિલકુલ, દુકાનમાં રહેલા સીસીટીવીના આધારે પોલીસે તપાસ શરૂ કરી છે। દુકાનનો માલિક પોલીસ સામે આવે તો જ આ મામલે મોટા ખુલાસા થાય તેવી શક્યતાઓ છે। બિલકુલ કીર્તેશ, આભાર આપની જાણકારી માટે। તો કતારગામમાં ચોરીનો આ અજીબોગરીબ કિસ્સો સામે આવ્યો। તો શરદ પવારના એનસીપી અધ્યક્ષ પદેથી રાજીનામું આપ્યા બાદ નવા અધ્યક્ષની પસંદગી માટે આજે 15 સભ્યોની સમિતિની બેઠક યોજાશે। પવારે કહ્યું છે કે સમિતિ જે નિર્ણય લેશે તે તેમને મંજૂર હશે। બીજી બાજુ કાર્યકરો રાજીનામાનો વિરોધ કરી રહ્યા છે। ગુરુવારે હજારો કાર્યકરો પાર્ટીના મુખ્યાલય ખાતે પહોંચ્યા હતા અને પવારે તમામ સાથે મુલાકાત પણ કરી હતી। આ પહેલા ગુરુવારે કોંગ્રેસના નેતા રાહુલ ગાંધી અને તમિલનાડુના સીએમ એમ.કે. સ્ટાલિને પવારને રાજીનામું પાછું ખેંચવાની અપીલ પણ કરી હતી। એનસીપીના સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર મંગળવારે શરદ પવારના રાજીનામાની જાહેરાતના થોડા કલાકો બાદ બંને સુપ્રિયા સેલને ફોન કરીને આ વાત કહી હતી। નવા પ્રમુખ માટે 3 નામ અત્યારે રેસમાં છે। પાર્ટીના નવા પ્રમુખ બનાવવા અંગે ચર્ચાઓ થઈ રહી હતી। અજીત પવાર, સુપ્રિયા સુલે અને પ્રફુલ્લ પટેલના નામ અત્યારે આગળ ચાલી રહ્યા છે। તો આજ સાથે વધુ વિગત સાથે मुंबई हमारा संवाददाता वसीम अंसारी जुड़ाया गया है। તેમની પાસેથી માહિતી મેળવીશું। वसीम, जो जानकारी मिल रही है, शरद पवार ने इस्तीफा दिया, उसके बाद ऐसा भी कहा जा रहा है जो कार्यकर है वो भी बोल रहे हैं कि वो इस्तीफा वापस ले ले। अभी बैठक मिलने वाली है, कितनी महत्वपूर्ण ये बैठक है, क्या चर्चा इस बैठक में होगी? देखिए, एनसीपी के लिए सबसे खास दिन है आज और सबसे अहम महाराष्ट्र की राजनीति को भी लेकर। सबसे पहले मैं आपको एनसीपी के बाहर का कार्यालय है वहां का मैं आपको नजारा दिखाना चाहता हूं कि किस तरह से यहां पर कार्यकर्ताओं की, नेताओं की भीड़ इकट्ठा हुई है। उनका साफ तौर पर एक ही मांग है, किसी भी हाल में शरद पवार जी ने जो इस्तीफा दिया है वो इस्तीफा वापस हो। इसे लेकर यहाँ पर कार्यकर्ताओं का दबाव लगातार पिछले कुछ दिनों से दिखाई दे रहा है। जिस तरह से हमने देखा कि 2 मई को शरद पवार ने जब अपना इस्तीफा की घोषणा की, उसके बाद से लगातार यहाँ पर उनके नेताओं द्वारा, कार्यकर्ताओं द्वारा ये प्रेशर लगाया जा रहा है कि वो अपना इस्तीफा वापस ले। बड़े बड़े बैनर्स भी लगाए गए हैं, कार्यकर्ताओं की भीड़ भी हो रही है। और जहां तक बैठक की बात करें, ये बैठक अभी कुछ ही देर में शुरू होगी। इस बैठक के लिए प्रफुल्ल पटेल, महाराष्ट्र के जो अध्यक्ष है जयंत पाटिल, अजीत पवार, सुप्रिया सुले, छगन भुजबल और जो केरल के जो पीसी जो नेतागण है वो भी यहाँ पहुंचे हैं। वहाँ के जो केरल के विधायक है वो यहाँ पहुंचे हैं और बाकायदा बैठक की शुरुआत होगी। जहां तक हमारे सूत्र बता रहे हैं कि इस बैठक में एक प्रस्ताव पास होगा, उस प्रस्ताव को प्रफुल्ल पटेल
पास करेंगे, जिसमें रखेंगे लोगों के सामने कि शरद पवार जी ने जो इस्तीफा दिया है वो इस्तीफा हमें मंजूर नहीं है, सबसे पहले वो इस्तीफा वापस लिया जाएगा। उसमें सभी के जो नेताओं की है वो सहमति होगी। इससे पहले हमने कुछ देर पहले जो केरल के नेताओं से हमने बात की तो उनका भी साफ तौर पर यह कहना था कि देश में एक ही चेहरा है एनसीपी का, उसी को सिर्फ शरद पवार है, दूसरा उन्हें मान्य नहीं है। तो सभी की यही भूमिका है कि किसी भी हाल में जो ये प्रस्ताव है वो पास किया जाए, शरद पवार का जो इस्तीफा है वो वापस हो। इसी लेकर देखिए महाराष्ट्र के जो कार्यकारिणी की बैठक के दौरान महाराष्ट्र के बाहर के जो नेतागण हैं वो यहाँ पर काफी बड़ी संख्या में पहुंच रहे, कार्यकर्ता है वो पहुंच रहे हैं, जो उनकी भूमिका है वो साफ तौर पे रख रहे हैं। इनका साफ तौर पे यही कहना है कि किसी भी हाल में ये जो इस्तीफा है वापस लिया जाए, नहीं तो ये काफी दिक्कतें हो सकती है। सभी अपनी अपनी बातों को लेकर यहाँ पर पहुंचे हैं, अपने अपने तरीके से यहाँ पर जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं उनके इस फैसले को लेकर। तो ये बड़ा दिन है खास करके एनसीपी की और सभी की निगाहें, और जिस तरह से सभी ने साफ कर दिया था खास करके एनसीपी के बड़े नेताओं ने कि ये फैसला उन्हें मंजूर नहीं है, तो आज की बैठक में भी यही फैसला लिया जा सकता है कि शरद पवार का जो इस्तीफा है वो वापस हो। इसे लेकर एक सहमति के साथ कुछ एक दिन पहले हमने देखा था कि शरद पवार ने जो यूथ के जो एनसीपी कार्यकर्ता है उनको संबोधित करते हुए इस बात पर भी जोर दिया था कि कमेटी का जो फैसला होगा वो उन्हें मंजूर होगा। तो अगर कमेटी का फैसला उन्हें मंजूर होगा तो आज कमेटी इस तरह के फैसले ले सकती है कि शरद पवार कंटिन्यू हो, क्योंकि एक वजह ये भी देखने मिल रही है कि जो नया नेतृत्व है उस नेतृत्व को अभी फिलहाल एक्सेप्ट करने के लिए ना एनसीपी के नेता राजी है ना उनके कार्यकर्ता राजी है। तो ये बड़ी दिक्कत हो सकती है उन्हें आने वाले दिनों में इस बात को लेकर, क्योंकि उम्र के उस पड़ाव पर शरद पवार पहुंच गए हैं जहां पर उन्हें एक बड़ा फैसला लेना था। और ऐसे वक्त में जब कार्यकर्ता और नेता इस फैसले को नहीं मानते तो आगे जाके पार्टी में कई तरह की अटकलें लगाई जा रही है कि फूट पड़ने के भी चांसेस साफ तौर पर दिखाई दे रहे। फिलहाल तो सभी की निगाह इस बैठक में है और बैठक कभी भी किसी भी देर में शुरू हो सकती है, लेकिन प्रेशर साफ तौर पर यहाँ पे कार्यकर्ताओं का बनाने का प्रयास है। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और बैनर्स हाथों में लिए हैं। इन हाथों में बैनर्स में साफ तौर पर इनका ये कहना है कि जो उनका इस्तीफा है वो इस्तीफा वापस लिया जाए, बिना इस्तीफा वापस लिए वो जाएंगे नहीं। जी वसीम, जो 3 नाम आगे चल रहे हैं अभी जो यही बता रहे हैं कि जो अध्यक्ष के लिए 3 नाम है, सुप्रिया सुले है और साथ ही बात करें तो अजीत पवार उनका भी नाम है और दूसरी तरफ प्रफुल्ल पटेल उनका भी नाम है। लेकिन इन तीनों की तरफ से जो निवेदन भी सामने आया है, कहीं ना कहीं प्रफुल्ल पटेल है वो भी बता रहे हैं कि कहीं वो जो उनके पास बहुत पहले से बहुत बड़ी जिम्मेदारी है तो वो ये जिम्मेदारी नहीं ले सकते। इस बीच जो समर्थक है वो क्या बोल रहे हैं इस बात में, क्योंकि इन तीनों का नाम आगे चल रहा है अध्यक्ष के लिए। एक बार फिर सवाल दोहराएंगे वसीम, कहीं जो 3 नाम आगे हैं, प्रफुल्ल पटेल है और साथ में बात करें तो सुप्रिया सुले और साथ अजीत पवार, इन तीनों का नाम आगे चल रहा है। इन तीनों का नाम कहीं ना कहीं अध्यक्ष पद में हो रहा है, लेकिन प्रफुल्ल पटेल पहले ही बता चुके हैं कि वो ये जिम्मेदारी नहीं ले सकते क्योंकि उनके पास बहुत पहले से ही बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे चुके हैं। सुप्रिया सुले का भी नाम कहीं आगे चल रहा है क्योंकि वो उनकी बेटी और उन्हें राजकारण के लिए उनको बहुत अच्छे से तैयार किया है राजनीति के लिए। इन तीनों के नाम के बीच जो समर्थक है वो क्या बोल रहे हैं, क्या उनका समर्थन मिलेगा इन तीनों नाम के लिए? देखिए, जहां तक 3 नाम की बात करें तो तीनों ही अपने आप में एक बड़ा नाम है। प्रफुल्ल पटेल जो देश की राजनीति में एनसीपी के लिए बहुत ही बड़े बड़े फैसले ले चुके हैं, साथ ही कई बड़ी जिम्मेदारियां उन्हें मिल चुकी है, लेकिन उन्होंने जिस तरह से अपना मत साफ कर दिया है कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के रेस में नहीं है। कई बड़े नाम और भी है, छगन भुजबल जो काफी पुराने हैं, जब एनसीपी बनी थी उस दौर में वो कांग्रेस छोड़कर शरद पवार के साथ आए थे। और जिस तरह से अब दूसरी बात है, जहां तक अजीत पवार और सुप्रिया सुले की बात है तो सबसे पहले कि अजीत पवार महाराष्ट्र के अपोजिशन लीडर भी है, एक बड़ा नाम भी है, महाराष्ट्र की राजनीति में उनकी पकड़ भी है और जो विधायक है उनके साथ उनकी पकड़ है, जो पार्टी के कार्यकर्ता है उन पे भी उनकी पकड़ है। पिछले कई सालों से महाराष्ट्र की राजनीति में सक्रिय है, तो उनको भी एक बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती थी। आयास कयास लगा जरूर रह जाते हैं, लेकिन जिस तरह से देखा गया है कि सारे मुद्दे कहीं ना कहीं विफल नजर आ रहे हैं। बिल्कुल वसीम, धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। તો એનસીપીને આજે નવા અધ્યક્ષ મળશે. અત્યારે બેઠક મળવાની છે ને આ બેઠકમાં 15 સભ્યોની જે સમિતિ છે તે નામ વિશે ચર્ચા કરશે.